Hello everyone. So here I am with the very next video for class 8 from the same book, that is Science Collins, and the name of the chapter is Combustion and Fossil Fuels. If I talk about the various contents that I will be taking in this chapter, then very firstly we'll be studying about combustion and its types, flame, fuel, its characteristics and various types, and fossil fuels. These four major topics we will be covering, and majorly in first part of the video we'll be covering these two parts, and in the second part of the video we'll be covering next two parts. So let's start off with combustion. First of all, what exactly the combustion means? It is a chemical reaction that produces heat and light when a substance burns in a presence of oxygen. कंबशन उस केमिकल रिएक्शन को बोला जाता है जिस केमिकल रिएक्शन के दौरान हीट और लाइट प्रोड्यूस हो जब एक सब्सटेंस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होता है. That means simply I can say that burning of a substance in the presence of oxygen to produce heat and light, this sort of chemical reaction is known as combustion. Combustion को chemistry की language में ये भी बोला जाता है that it is simply a reaction of a substance with oxygen. किसी substance को जब oxygen के presence में react कराया जाता है, that is combustion only. Combustion इसके बाद इसी टर्म से रिलेटेड हमारे पास दो टाइप के सब्सटेंसेस आते हैं. वन इज कंबस्टिबल सब्सटेंस एंड अनदर इज नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस. कंबस्टिबल सब्सटेंस मीन्स substances that undergo the process of combustion, those catch fire easily in presence of oxygen are called combustible substances. ऐसे सब्सटेंसेस जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बहुत इजीली बहुत जल्दी फायर कैच कर लेते हैं एंड बहुत इजीली कंबशन प्रोसेस को फॉलो अप करते हैं, these substances are known as combustible substances. For example, wood, paper, LPG and kerosene oil. And the substances that do not undergo the process of combustion, those do not catch fire even in presence of oxygen, are called non-combustible substances. And ऐसे substances जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी कोई combustion के प्रोसेस को फॉलो अप नहीं करते हैं, they do not catch fire, they are known as non-combustible substances. Example, water, stone and glass. So two types of substances are combustible substances and non-combustible substances. In nature, like in our surroundings, many of the substances are there, they catch fire easily. बट बहुत सारे सब्सटेंसेस ऐसे भी हैं जो फायर कैच करते ही नहीं हैं, चाहे हम कितना भी ट्राई करें, उन्हें कितना भी ऑक्सीजन प्रोवाइड कराएं, बट स्टिल दे नेवर कैच द फायर. सो इन दिस, on the basis of this principle, we can slot out the substances into two categories, that is combustible substances and non-combustible substances. After this, we have various types of combustion: rapid combustion, spontaneous combustion, complete combustion, incomplete combustion and explosion. The very first is rapid combustion. What rapid combustion means? In this type of combustion, a very large amount of heat and light is released in very short span of time. रैपिड कंबशन हम तब बोलते हैं जब कोई भी सब्सटेंस बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट और लाइट हमें रिलीज करके देता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होने के बाद, और वो भी बहुत छोटे टाइम में. दैट मीन्स जो सब्सटेंस बहुत जल्दी बर्न अप हो जाता है एंड बर्न अप होने के बाद वो बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट हमें दे, तो दैट सॉर्ट ऑफ कंबशन इज रैपिड कंबशन. फॉर एग्जाम्पल, बर्निंग ऑफ पेपर, burning of when we use LPG and CNGs. In all these examples, the combustion is a rapid combustion. That means a very fast combustion. In very short span of time, these things can burn up to produce a very large amount of heat and light. Next is a spontaneous combustion. This is very important. In this, substance burst into flame without the application of heat. स्पॉन्टेनियस कंबशन का वो टाइप है जिसमें सब्सटेंस जो है वो फ्लेम में बर्स्ट आउट हो जाता है, उसमें फ्लेम जो है वो बहुत इजीली आ जाती है
इवन विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ हीट, हम उस सब्सटेंस को हीट कर भी नहीं रहे हैं इस कंबशन के टाइम पे, हम उसे कोई हीट अप्लाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो सब्सटेंस जो है वो बहुत जल्दी फायर कैच कर लेता है. फॉर एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ फॉस्फोरस इन मैच स्टिक. जो मैच स्टिक होती है उसके टॉप के ऊपर फॉस्फोरस एक नॉन मेटल लगा होता है, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. हमने ये भी चीज़ पढ़ी थी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर में कि जो फॉस्फोरस होता है इट इज़ हाईली रिएक्टिव, इट कैचेस फायर वेरी इजीली. तो उसमें हम क्या करते हैं, हम कोई हीट प्रोवाइड नहीं करते, लेकिन उसके बावजूद सिर्फ एक रबिंग से जो वो मैच स्टिक है वो बर्न होना शुरू हो जाती है. सो दैट काइंड ऑफ कंबशन इज कॉल्ड एज स्पॉन्टेनियस कंबशन, इन विच वी आर नॉट इवन अप्लाइंग द हीट टू द सब्सटेंस and substance burst into flame very quickly. So this kind of combustion is spontaneous combustion. Next is complete combustion. Students, please remember one thing, that for combustion, for burning a substance, presence of oxygen, presence of air is a necessary condition. आप ऑक्सीजन की एब्सेंस में किसी भी सब्सटेंस को प्रॉपरली कंबस्ट आउट नहीं कर सकते हैं, वो प्रॉपरली बर्न अप नहीं होगा. तो कंप्लीट कंबशन मीन्स when sufficient amount of oxygen is provided during combustion. जब किसी चीज़ को burn out करते टाइम हम proper amount of, बिल्कुल sufficient amount of oxygen provide करा रहे हैं substance को, तो हम उस substance की combustion को बोलेंगे complete combustion. And the substances or the products that we receive during complete combustion are heat, water, carbon dioxide and light. These substances are produced during the complete combustion of the substances. And if I talk about incomplete combustion, then incomplete combustion is exactly opposite to complete combustion. जिस combustion के टाइम पर हम substance को insufficient amount of oxygen provide कराएंगे burning के लिए, that type of combustion will be incomplete combustion. और इसके products होंगे heat, water, carbon monoxide, soot. These two things are different from the above products. कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे लिए कम हार्मफुल है, बट कार्बन मोनोक्साइड इज वेरी मच डेंजरस फॉर आवर लाइव्स. इसके अलावा सूट मीन्स द ब्लैक स्मोक दैट यू गेट. फॉर एग्जाम्पल बहुत बार द वेरी ब्लैक स्मोक दैट यू कैन सी, जब किसी जगह पर बहुत ज़्यादा आग लग जाती है तो हमें स्काई में बहुत ज़्यादा ब्लैक कलर का क्लाउड जो है वो बनता हुआ नजर आता है. एक्चुअली इट कंसिस्ट ऑफ सूट ओनली, ब्लैक अनबर्न्ड पार्टिकल्स. And the last type is explosion. This type of combustion occurs in which light, heat, sound, large amount of gases are released. Explosion में बहुत ज़्यादा एकदम से suddenly large amount of light, sound and बहुत सारी gases जो हैं वो release होती हैं out of a sudden, like suddenly it happens. फॉर एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ फायर क्रैकर्स. जब हम पटाखों को जलाते हैं या फिर कोई भी बॉम्ब लाइक वेपन जो है कोई भी बर्स्ट आउट होता है, तो उस केस में एकदम से सडनली अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड गैसेस गेट रिलीज्ड. सो दिस कम अंडर द एक्सप्लोजन कैटेगरी. सो दीज आर द वेरियस काइंड ऑफ combustions. Now the question arises that what are the various necessary conditions that are required for combustion. कंबशन को कम्प्लीटली सक्सेस आउट करने के लिए जो नेसेसरी कंडीशंस हमें चाहिए, द वेरी फर्स्ट इज प्रेजेंस ऑफ कंबस्टेबल सब्सटेंस. ऑब्वियस ही बात है कंबस्टेबल सब्सटेंस का होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंस की हम कंबशन करने की ट्राई करेंगे तो वो कभी होगा ही नहीं. बिकॉज नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंसेज लाइक वाटर, वुड, दे नेवर कैच फायर इवन इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन. सो कंबस्टेबल सब्सटेंस जैसे कि केरोसिन, पेपर, वुड, ऐसे सब्सटेंसेज होने ज़रूरी हैं. द नेक्स्ट नेसेसरी कंडीशन इज presence of oxygen because it is the supporter of combustion. हम combustion को कभी भी ऑक्सीजन की एब्सेंस में फुलफिल नहीं कर सकते हैं, बिकॉज प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज वेरी मच नेसेसरी. ऑक्सीजन एक्ट एज अ सपोर्टर ऑफ combustion. So presence of oxygen is very important for combustion. Next is reaching ignition temperature. This ignition temperature is a new term. Kindly look upon कि actually what is the ignition temperature. हर कंबस्टेबल सब्सटेंस का एक मिनिमम टेम्परेचर होता है कि उस टेम्परेचर पर रीच होते ही वो हीट होना, वो बर्न होना शुरू हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कह रही हूँ कि वुड का इग्निशन टेम्परेचर है 250 डिग्री सेल्सियस टू 300 डिग्री सेल्सियस,
दैट मीन्स मुझे वुड को 250 डिग्री सेल्सियस तक हीट करना ही पड़ेगा। जिस मोमेंट वुड 250 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर तक पहुंच गई वो फौरन बर्न होना शुरू हो जाएगी, कंबस्ट होना शुरू हो जाएगी। इसी तरीके से अगर मैं कह रही हूँ मेरे पास अल्कोहल है और अल्कोहल का जो इग्निशन टेम्परेचर है वो 70 डिग्री सेल्सियस है, इसका मतलब मुझे अल्कोहल को बर्न करने के लिए, कंबस्ट करने के लिए 70 डिग्री टेम्परेचर तक उसे हीट करना ही पड़ेगा, तभी वो हीट को, फायर को कैच कर पाएगी। सो इग्निशन टेम्परेचर का मीनिंग है द लोएस्ट मिनिमम टेम्परेचर एट विच द सब्सटेंस स्टार्ट्स बर्निंग इन द प्रेजेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर। हर सब्सटेंस का वो लोएस्ट मिनिमम टेम्परेचर जिसके बाद वो बर्न करना स्टार्ट कर देती है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, दैट लोएस्ट मिनिमम टेम्परेचर इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर। तो यानी अगर हमें किसी भी सब्सटेंस को कंबस्ट करना है तो हमें उस सब्सटेंस के इग्निशन टेम्परेचर तक तो पहुंचना ही पड़ेगा। बिकॉज अगर सपोज पेपर का इग्निशन टेम्परेचर जो है वो है 80 डिग्री सेल्सियस, लेकिन आप उसे खाली 60 डिग्री सेल्सियस तक हीट कर रहे हो तो पेपर कभी भी फायर कैच करेगा ही नहीं, बिकॉज यू हैवंट रीच्ड इग्निशन टेम्परेचर। सो रीचिंग इग्निशन टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन टू कंबस्ट आउट द सब्सटेंस। एंड इसी इग्निशन टेम्परेचर के बेसिस पर हमारे पास एक न्यू टाइप ऑफ कैटेगरी ऑफ सब्सटेंसेस सामने आती है, दैट इज इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस का मीनिंग है दोज सब्सटेंसेस दैट आर हैविंग वेरी लो टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर्स एंड कैच फायर वेरी इजीली। आप खुद सोचो, जो ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनका इग्निशन टेम्परेचर काफ़ी लो है, दैट मीन्स हमें उन्हें काफ़ी लो टेम्परेचर तक लाने के लिए हीट करना पड़ता है, तो यानी वो फायर बहुत इजीली कैच कर लेंगे। सपोज मेरे पास एक सब्सटेंस है ए, उसका इग्निशन टेम्परेचर है 70 डिग्री सेल्सियस, और एक सब्सटेंस है मेरे पास बी जिसका इग्निशन टेम्परेचर है 200 डिग्री सेल्सियस। तो ज़्यादा जल्दी फायर कौन कैच करेगा? सब्सटेंस ए, क्योंकि मैं उसके इग्निशन टेम्परेचर को ज़्यादा जल्दी रीच कर पाऊंगी हीट करते करते। तो ऐसे सब्सटेंसेस जिनका इग्निशन टेम्परेचर काफ़ी लो होता है एंड दे कैच फायर वेरी इजीली, दे आर कॉल्ड इन्फ्लेमेबल सब्सटेंसेस। पेट्रोल में, केरोसिन में, अल्कोहल में, सीएनजी में, एलपीजी में, इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा जल्दी आग क्यों लग जाती है? वाई दे डू कैच फायर वेरी इजीली एंड वेरी क्विकली? बिकॉज उनका ignition temperature इतना लो है that only with a very less amount of heat the ignition temperature is crossed and they get fire. So inflammable substances are those which are having very low ignition temperature and catches fire very easily. One very very important activity, ये this is called Bunsen burner. इस बर्नर को लेबोरेटरीज में यूज़ किया जाता है टू कैरी आउट द एक्सपेरिमेंट्स। इस बंसन बर्नर में यू कैन सी अ होल ओवर हेयर, यहाँ पर एक होल होता है जिसको हम एयर होल कहते हैं। ये जो एयर होल होता है इसके थ्रू प्रॉपरली एयर का सर्कुलेशन होता है अंदर, बिकॉज वी हैव स्टडीड कि जो एयर है इट इज़ अ नेसेसरी कंडीशन फॉर कंबशन। तो इसी तरीके से इसी से रिलेटेड यहाँ पर एक नॉब होता है, यहाँ से गैस सप्लाई प्रॉपरली हो रही होती है। एंड इसके अलावा ये जो आप सर्कल देख सकते हैं दिस इज कॉल्ड नोजल। यहाँ नोजल से हम ये मूवेबल होता है, हम इसको प्रॉपरली राउंड राउंड करके, जिस तरीके से हम किसी जार का लिड जो है वो सर्कुलर मोशन को यूज़ करके बंद या खोलते हैं, ठीक उसी तरीके से हम इस नोजल को ऊपर लेकर जा सकते हैं या नीचे ला सकते हैं। तो अगर आप इस सिचुएशन को देखेंगे तो यहाँ पर ये एयर होल जो है ये प्रॉपरली पूरा ओपन है और यहाँ से प्लेंटी ऑफ एयर जो है वो अंदर जा सकती है। लेकिन अगर मैं आपको ये केस दिखाऊं तो इसमें हमने नोजल को टाइट अप कर दिया है और जो एयर होल है वो क्लोज हो गया है। दैट मीन्स इस केस में प्रॉपर एयर सप्लाई है और इस केस में प्रॉपर एयर सप्लाई नहीं है। सो दिस इज द डिफरेंस। क्या आप देख सकते हैं इन फ्लेम्स के कलर्स को? जिस केस में प्रॉपर एयर सप्लाई है उस केस में फ्लेम का कलर है ब्लू, जबकि जिस केस में जो एयर है उसका शॉर्टेज है, प्रॉपर एयर अमाउंट नहीं है, उस केस में फ्लेम का कलर है येलो। इस केस को हम कहते हैं व्हेन कॉलर इज ओपन, दिस इज नोन एज कॉलर, एंड इन दिस केस कॉलर इज क्लोज्ड। तो हम इसके बेसिस पे, इस एक्सपेरिमेंट ये जो हमने ऑब्जर्व किए हैं चीज़ें, इसके बेसिस पे हम क्या कह सकते हैं? प्लीज़ रीड इट वेरी केयरफुली कि व्हाट कैन वी कंक्लूड फ्रॉम इट।
व्हेन द रेगुलेटिंग कॉलर इज क्लोज्ड, जब हमने रेगुलेटिंग कॉलर को क्लोज कर दिया है तो देयर इज इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ एयर और ऑक्सीजन अवेलेबल, तब हमारे पास फ्लेम में, बर्नर में जो अमाउंट ऑफ एयर या ऑक्सीजन जा रही है वो इनसफिशिएंट है। और जब इनकम्प्लीट, और जिसकी वजह से क्या होगा, इनकम्प्लीट कंबशन, बिकॉज इनकम्प्लीट कंबशन इज द कंबशन विच इज कैरीड आउट इन द एब्सेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन, और उसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होता है, फॉर्मेशन ऑफ सूट। ये एग्जैक्टली वही है जिस तरीके से हमारे घरों में जब हमारी फ्लेम येलो कलर की आने लगती है क्योंकि उसके एयर होल्स जो हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, तो वो हमारे पैन्स को, हमारे यूटेंसिल्स के बॉटम को काला करना शुरू कर देती है। उसका रीज़न यही होता है कि एयर होल्स बंद हो गए होते हैं, गैस स्टोव के प्रॉपर एयर सप्लाई नहीं हो रही होती, एंड इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सूट पार्टिकल्स बिकॉज ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन। सो फ्लेम इज येलो and it blackens the utensils। लेकिन जब हम इस केस में, बंसन बर्नर के केस में, हमने उन कॉलर्स को रीओपन कर दिया तो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन वहाँ अवेलेबल है, जिसकी वजह से कंप्लीट कंबशन हो रही है और कोई सूट प्रोड्यूस नहीं हो रहा। सूट मीन्स अनबर्न्ट पार्टिकल्स, कुछ ऐसे पार्टिकल्स जो पूरी तरीके से कंबस्ट नहीं हो पाए हैं और वो एयर में रिलीज किए जा रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं सूट पार्टिकल्स। तो यानी जब इनकम्प्लीट कंबशन होगी तो हमें येलो कलर का फ्लेम मिलेगा और हमें सूटी फ्लेम मिलेगा, और जब प्रॉपरली कंप्लीट कंबशन होगी, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होगा, तो कोई सूट प्रोड्यूस नहीं होगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट। द वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी रिलेटेड टू द नेसेसरी कंडीशंस ऑफ कंबशन, हमने इस एक्सपेरिमेंटेशन में क्या किया, वी हैव बर्न आउट द 2 कैंडल्स, हमने 2 कैंडल्स जलाई एंड हमने 2 पेपर कप्स बनाए इस तरीके के शेप से, और हमने उन पेपर कप्स को टोंग्स की हेल्प से, इसे बोला जाता है टोंग्स की हेल्प से हमने उन्हें सस्पेंड किया बर्निंग फ्लेम के ऊपर। एक पेपर कप में हमने वाटर जो है कुछ लेवल तक फिलअप कर दिया, जबकि एक पेपर कप हमने एम्प्टी रखा। इस सिचुएशन में, इस एक्सपेरिमेंटेशन में हमने क्या चीज़ ऑब्जर्व की कि जो पेपर कप जिसमें हमने वाटर ऐड नहीं किया था वो इंस्टेंटली उसने बर्न करना शुरू कर दिया, वो कैंडल फ्लेम के ऊपर रखे जाते ही उसने बर्न करना शुरू कर दिया। लेकिन जो सेकंड वाला पेपर कप था जिसमें हमने कुछ अमाउंट ऑफ वाटर ऐड की थी, उस पेपर कप ने जलने के लिए थोड़ा सा टाइम लिया और वो इंस्टेंटली नहीं बर्न हुआ। इसका रीज़न क्या है? इस केस में बहुत रैपिडली जो इस कैंडल ने फ्लेम या हीट प्रोवाइड की इस पेपर को, उसने बहुत रैपिडली पेपर के इग्निशन टेम्परेचर को क्रॉस कर दिया। जबकि अगर मैं इस पेपर कप की बात करूं तो इसमें वाटर की प्रेजेंस की वजह से जो हीट कैंडल इस पेपर कप को दे रही थी वो हीट वाटर ने एब्जॉर्ब कर ली, जिसकी वजह से पेपर कप का जो इग्निशन टेम्परेचर था वो रीच नहीं हो पा रहा था, क्योंकि जो हीट कैंडल इस पेपर कप को दे रहा है वो हीट बहुत हद तक ये वाटर जो है वो कंज्यूम कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, इसीलिए ये पेपर कप नहीं जल पा रहा क्योंकि इसका इग्निशन टेम्परेचर रीच अप नहीं हो रहा। लेकिन जिस मोमेंट इस पेपर कप से सारा वाटर इवेपोरेट हो जाएगा, दिस पेपर कप विल स्टार्ट burning. So this shows that water can be used to deprive the fire up to some extent, which we will study in the next clip. Hence it also shows that yes, reaching the ignition temperature of any substance is very much important to combust that particular substance. Next important thing is extinguishing fire. अब हर केस में फायर जो है वो डिजायरेबल नहीं होती, many times it is बिकॉज ऑफ एक्सीडेंटल कॉजेज ओनली। तो आखिर अगर फायर है हम उसको एक्सटिंग्विश कैसे करें, हम उसे पुट ऑफ कैसे करें, उसे बुझाएं कैसे? जो हमने जितनी भी कंबशन की नेसेसरी कंडीशंस पढ़ी, 3 नेसेसरी कंडीशंस की प्रेजेंस ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंसेस, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड रीचिंग इग्निशन टेम्परेचर, अगर हम इन तीनों में से किसी भी एक कंडीशन को कंट्रोल कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, तो वो फायर पुट ऑफ हो जाएगी, बिकॉज उन तीनों कंडीशंस के फुलफिल हुए बिना कंबशन हो ही नहीं सकती है। सो लेट्स सी हाउ फायर कैन बी एक्सटिंग्विश्ड।
सबसे पहले वी कैन यूज वाटर, हम आग को बुझाने के लिए, फायर को एक्सटिंग्विश आउट करने के लिए वाटर को यूज कर सकते हैं, बिकॉज इट इज अ नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस, इट कैन बी यूज टू पुट ऑफ द फायर। क्योंकि वाटर एक नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस है, वो कभी भी फायर कैच नहीं करता है, तो इसीलिए हम वाटर को यूज कर सकते हैं आग को बुझाने के लिए। और एक्चुअल में वाटर करता क्या है, सपोज किसी सब्सटेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा आग लग गई है, सपोज कोई क्लोथ है जो कि जल रहा है जिसमें आग लग गई है, तो उसमें आग कैसे लगी होगी, उस क्लोथ का जो इग्निशन टेम्परेचर है वो रीच हुआ, सपोज 70 डिग्री सेल्सियस उस क्लोथ का इग्निशन टेम्परेचर था, तो यानी उसको 70 डिग्री सेल्सियस तक की हीट मिली और उसने फायर कैच कर ली। अगर मैं उस सब्सटेंस के ऊपर वाटर को स्प्रिंकल आउट करूंगी तो वाटर क्या करेगा, उस सब्सटेंस से, उस क्लोथ से हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा, और जब वाटर ने हीट एब्जॉर्ब कर दी यानी उस सब्सटेंस का टेम्परेचर जो 70 डिग्री उसके इग्निशन टेम्परेचर को क्रॉस कर चुका था, वो थोड़े हद तक लोअर आउट हो जाएगा, क्योंकि कुछ अमाउंट ऑफ हीट जो है वो वाटर ने एब्जॉर्ब कर ली। और जैसे ही उस क्लोथ का इग्निशन टेम्परेचर लोअर आउट हुआ, दैट मीन्स इग्निशन टेम्परेचर इज नॉट बीइंग रीच्ड, हेंस फायर विल बी पुट ऑफ। और जैसे ही टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर से कम हुआ, वैसे ही वो क्लोथ जलना बंद कर देगा। सो ऑन व्हाट प्रिंसिपल वाटर वर्क्स, एक्चुअली इट एब्जॉर्ब्स हीट and lowers the temperature of substance, hence ignition temperature is not reached and fire is put off। तो जो water है वो substance से हीट को एब्जॉर्ब करके उसका टेम्परेचर लोअर कर देता है और उसके इग्निशन टेम्परेचर को पहुंचने नहीं देता, जिसकी वजह से फायर पुट ऑफ हो जाती है। बट very important thing to be noted is water is not appropriate in these two conditions। इन दो conditions में हम water को use नहीं कर सकते हैं fire को extinguish करने के लिए। सबसे पहला, in electrical fires, अगर कहीं पर भी कोई fire accident electricity damage की वजह से हुआ है, तो हम वहाँ पर water को put off fire करने के लिए use नहीं कर सकते। उसका reason क्या है, because water is a good conductor of electricity, क्योंकि उस केस में water जो है वो फायर को पुट ऑफ करने की बजाय उसे और ज्यादा प्रोनाउंस्ड कर देगा, बिकॉज वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी क्रॉस हो सकती है। तो यानी हम वाटर को यूज नहीं कर सकते इन केस ऑफ एक्सीडेंटल इलेक्ट्रिकल फायर्स। उसके अलावा हम वाटर को यूज नहीं कर सकते अगर आग पेट्रोल, डीजल, केरोसिन इनकी वजह से लगी है, बिकॉज वाटर जो है वो इन तीनों सब्सटेंस से लाइट वेट होता है। तो अगर सपोज पेट्रोल में आग लगी हुई है और मैं उसके ऊपर पानी डालूंगी, तो एक्चुअल में क्या होगा, जो वाटर है वो पेट्रोल के नीचे, वाटर जो है वो पेट्रोल, डीजल और केरोसिन के नीचे आ जाएगा और पेट्रोल, डीजल, केरोसिन फ्लोट करने लगेंगे इन सारे सब्सटेंसेस के ऊपर। पेट्रोल, डीजल और केरोसिन, क्योंकि ये सब्सटेंसेस जो हैं ये लाइटर हैं वेट में वाटर से, और जो सब्सटेंस लाइट वेट होता है वो ऊपर फ्लोट करता है। तो जब वाटर जो है वो इन सब्सटेंसेस के नीचे आ जाएगा और ये सब्सटेंसेस ऊपर फ्लोट करेंगे, तो अभी भी इनका कांटेक्ट तो ऑक्सीजन और एयर के साथ है ही, तो ये अभी भी जलते रहेंगे, वाटर इन्हें पुट ऑफ नहीं कर पाएगा। इसीलिए पेट्रोल, डीजल और केरोसिन के केस में जो फायर्स होती हैं, हम इन चीज़ों को कभी भी वाटर की हेल्प से पुट ऑफ नहीं कर सकते हैं, बिकॉज पेट्रोल, डीजल एंड केरोसिन दे आर लाइटर इन वेट विद रिस्पेक्ट टू वाटर एंड दे फ्लोट ओवर वाटर एंड कीप्स बर्निंग। ये वाटर के ऊपर फ्लोट करते हैं क्योंकि ये सभी लाइटर हैं वेट में वाटर से, एंड they keeps on burning. So fire cannot be put off with the help of water if fire is due to petrol, kerosene and diesel. Now the remedy of this, जिन केसेस में हम वाटर को यूज नहीं कर सकते हैं, उन केसेस में हमारे पास रेमेडी है कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड, क्योंकि जो आज तक आपने वो रेड कलर का सिलेंडर देखा है जिसको हम फायर पुट ऑफ करने के लिए यूज करते हैं, आप एक्चुअल में उसका मीनिंग अब पता करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस है, मतलब वो जलता नहीं है, इट इज अ नॉन कंबस्टिबल, इट डजंट गो अंडरगो कंबशन। तो इसलिए हम कार्बन डाइऑक्साइड को फायर पुट ऑफ करने के लिए यूज कर सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी, इट इज हैवियर देन एयर, ये एयर से हैवी होता है। इसका मतलब अगर आप इमेजिन कीजिए, अगर ये एक ऐसा सब्सटेंस है जिसने फायर कैच की हुई है,
अगर मैं इसके ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड का स्प्रे करूंगी तो जो इसके अराउंड एयर या ऑक्सीजन प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी, वो इस एयर को रिप्लेस करके अपनी खुद की ब्लैंकेट इसके ऊपर बना लेगी। यानी इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड ने अपना ब्लैंकेट उस सब्सटेंस के ऊपर बना दिया, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हैवी है एयर से, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो नीचे रहेगी और एयर ऊपर, बिकॉज हैवी सब्सटेंसेस सेटल्स डाउन। इससे क्या होगा, जैसे ही सब्सटेंस को कार्बन डाइऑक्साइड के ब्लैंकेट ने कवर कर लिया, उसकी लेयर ने कवर कर लिया, तो उस सब्सटेंस का ऑक्सीजन के साथ, एयर के साथ कांटेक्ट जो है वो वैनिश हो गया, क्योंकि अब वो एयर के कांटेक्ट में नहीं आ पा रही है, वो तो खाली कार्बन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में आ पा रही है। इस वजह से सब्सटेंस को और कंबस्ट होने के लिए ऑक्सीजन और एयर नहीं मिलेगी, और फायर और जो कंबशन उस सब्सटेंस की हो रही है दैट विल बिकम नलिफाई, एंड सब्सटेंस की जो फायर है दैट विल बी पुट ऑफ। सो कार्बन डाइऑक्साइड के जो एक्सटिंग्विशर्स होते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड यही प्रिंसिपल फॉलो करती है कि व्हेनेवर कार्बन डाइऑक्साइड इज स्प्रेड ऑन द बर्निंग सब्सटेंस, देन इट फॉर्म्स अ लेयर ऑन द बर्निंग सब्सटेंस बिकॉज it is heavier than air, and it cuts off the contact between burning substance and air, which is a very like supporter of combustion. Hence, without oxygen or without air, combustion will not be supported, hence fire puts off. और एक्सटिंग्विशर्स एक्चुअल में दो टाइप के हमारे पास प्रेजेंट है। वन इज कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर्स, तो वो जो रेड कलर के सिलेंडर्स होते हैं उनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर में फिल की जाती है, जिसको हम जलने वाले सब्सटेंस के ऊपर स्प्रे कर देते हैं और वो फौरन उस सब्सटेंस में जो फायर लगी है उसे बंद कर देती है। लेकिन हमारे पास एक और टाइप के एक्सटिंग्विशर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स। इन एक्सटिंग्विशर्स में क्या होता है कि दो केमिकल सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं। एक केमिकल सब्सटेंस का नेम है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड को हम केमिकल लैंग्वेज में अगर लिखें तो उसका फॉर्मूला ये है, और दूसरा केमिकल होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, उसका केमिकल फॉर्मूला होता है ये। तो ये दो केमिकल्स इन फायर एक्सटिंग्विशर्स में प्रेजेंट होते हैं, और ये जब मिक्स होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं, और यही कार्बन डाइऑक्साइड फिर हम सेम इसी तरीके से जो हमने अभी डिस्कस किया, सेम इसी तरीके से हम सब्सटेंस को कंबशन से रोकने के लिए यूज करते हैं। तो इन दिस केस डायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज रिलीज, एंड इन दिस केस via mixing these two chemicals carbon dioxide gas is released, and hence after the release of carbon dioxide, after the reaction of between these two chemicals, then carbon dioxide is used. So this is all about extinguishing the fire.